Okay, we were solving the tableau 3, right? It was tableau 2. This was tableau 2, this was tableau 3. Why we have created the tableau 3? Because it was not in the tableau 2, it was not the optimal solution, which was something positive 0. And we were preparing the table 3. Now in the table 3, we had prepared till this. Now we will calculate the Z. We have calculated the values for the key row and the non-key rows. I think by this time you are comfortable, the one which we have done previously. Okay. Now, let's say it would be easy. 3 multiplied by 10 plus 17 multiplied by 0. 17 plus 9 multiplied by 30 comes out to be 330. Is it clear? Because x is contributing 10 units to the solution, and then we have the 3 units of x. We are preparing if 3 units and 1 unit was contributing 10, then 3 units will be contributing 30. Plus 17 into 0, nothing is contribution 0. 9 multiplied by 30 to 70, then it comes out to be 330 is the contribution, total contribution. In the same way, x1 multiplied by 10 plus 0 multiplied by 0 plus 0 by 30. It would be 10. Is I have done something wrong? Because it would be 30, then total would not be 330. X. Oh, sorry, yeah. Its contribution is 20. Sorry. Just give me a second. It is 20. Written as X is contributions 20, not 10. Okay, now it was fine. Because I was thinking, how is 330 is coming? Is 330, 3 multiplied by 20 is 60, and now it's fine. Yeah. 1 multiplied by 20, 20 plus 0, 0. Comes out to be 20. Here it comes out to be 0, 0, 0, 130. Half into 10 plus 0 into minus, it would be 30. It is 5. Sorry. एक minute. 30 नहीं. 5 comes out to be 0. It comes out to 5 by 2. Right? Now we will calculate the net effect, Cj minus Zj. It is from here, we will calculate 20 minus 20 is 0, 30 minus 30 is 0. 0 minus 5 is minus 5, 0, 0, 0 minus 5 by 2. Good. Now in this row Cj minus Zj, we are calculating net effect is 0 or negative. I will say all values are negative or 0. So, optimal solution has been reached. We have been reached to the optimal solution. हमारा optimal solution क्या है? Z is the maximum profit which we can get. Is it clear? So, we can say maximum value of Z is 330. This is the maximum value of 330, and it occurs when x is equals to 3, y is equals to 9, and S1 is 0, S2 is 17, and S3 is 0. This is my solution. Clear? आपसे एग्जाम में आता है, you say that this is your solution. Maximum value of Z is 330, and it occurs when x is equals to 3 है. X is 3, y is 9, x2 is 17, but S1 and
x3 would be 0 because वो नॉन बेसिक में आ गए. This is my basic variables. जो वैल्यूज है something values would be there. अगर बाकी जो वैल्यूज यहाँ नहीं है मीन्स दैट आर द नॉन बेसिक वेरिएबल्स वैल्यूज है हमारी. आई थिंक मैंने पूरा क्लियरली समझाया भी था बेसिक वेरिएबल्स एंड नॉन बेसिक वेरिएबल्स. So this is my solution. Now, important part which you should know is the opportunity cost. I have written the notes. Let me see where it is. Somewhere, yeah. I will explain you the opportunity cost and the shadow price, which is important. Now, first is opportunity cost. What do we mean by the opportunity cost? What you lose if you bring the new variable into the solution. What you lose if you bring a new variable to the solution, that is your opportunity cost. आप कोई भी नया variable लेकर आ रहे हो, but you leave something. You lose something to bring that new variable into the picture, into the solution. The loss in the objective value or the profit when the new variable enters the solution, that is opportunity cost. ठीक है, जो भी आपने लॉस किया ऑब्जेक्टिव वैल्यू में या आपके ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट्स में, तो कोई भी नए वेरिएबल लाने में, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बहुत सिंपल एग्जांपल्स मैंने लेके बता रखा है. इमेजिन यू वांट टू ऐड अ न्यू फ्रेंड टू योर क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, है ना. अगर आपको अपने टू इंक्लूड दैट न्यू फ्रेंड, वन करंट प्लेयर मस्ट लीव द टीम, है ना. इफ द लिविंग प्लेयर वाज वेरी गुड, योर टीम परफॉर्मेंस डिक्रीजेस. दैट डिक्रीज इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, जो भी उसकी परफॉर्मेंस थी, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Now, when you add a new variable like x1, x2, etc. into the basics, it pushes out one of the existing variables like a slack variable or another decision variables. हमने देखा ना, हमने एक entering variable, departing variable किया था. enter हुआ variable तो कोई variable depart भी हुआ, right? So, because of this objective function, जो profit था decrease by the certain amount. जो भी decrease हो रहा है उसको हम opportunity cost कह रहे हैं. Is it clear? मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझा रही हूँ, मतलब रिपीटेड समझा रही हूँ different examples लेके. Okay, why do we calculate Cj minus Zj? Because Cj minus Zj tells us the net effect of bringing a new variable into the solution. आप नया वेरिएबल जो सोल्यूशन में ला रहे हो वो आपको वो बता रहा है. If Cj minus Zj is more than 0, a new variable increases profit by bringing it in, है ना. अगर आपका Cj minus 0 से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो इंक्रीज कर रहा है प्रॉफिट. पॉजिटिव में कितना इंक्रीज कर रहा है, तो हम उसको ब्रिंग इट करते हैं. अगर हमारा 0 या नेगेटिव है, मींस नो इंप्रूवमेंट, डोंट ब्रिंग इट, ऑलरेडी ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल चुका है, राइट. ये भी मैंने आपको वैसे क्लियरली करके भी बता दिया था. नाउ आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट. नाउ इफ ब्रिंगिंग अ न्यू वेरिएबल इनटू द प्रॉफिट ऑफ ₹10, बट इट पुशेस आउट द वेरिएबल दैट कंट्रीब्यूटेड 6. एक वेरिएबल आ रहा है जिसका प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट ₹10 का कर रहा है, लेकिन वो वेरिएबल और किसको पुश आउट कर रहा है, उस वाले वेरिएबल को जो कंट्रीब्यूट 6 का कर रहा है. तो आप उसका नेट इफेक्ट क्या देखोगे, 10 minus 6, that is 4. Means this 6 you lost is the opportunity cost. जो 6 आपने खोया है ना, अब आपको कि 6 गया है, 10 तो आया है, 6 आपको नेट प्रॉफिट 4 का हो गया है बेनिफिट, लेकिन आपने जो 6 खोया, that is your opportunity cost. Whenever we add a new variable, one current variable must leave. Whatever contribution we lose from one variable that leaves is the opportunity cost. I think यहाँ तक क्लियर है. Okay. मैं थोड़ा सा सिंप्लेक्स के फॉर्म में बताती हूँ. सॉरी. हाँ जी. इफ सिंप्लेक्स टेबल में W2 जो थी मेरी, मैं दोबारा से पेस्ट करी है. जस्ट अंडरस्टैंड, ये टेबल हमने जो मिली थी, ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं था. जो इन सिंप्लेक्स W2 फॉर ब्रिंगिंग x ब्रिंगिंग इन वन यूनिट. अच्छा, मैं एक x ला रही हूँ. फॉर ब्रिंगिंग इट 1 डिस्प्लेसेस 2 यूनिट ऑफ s, है ना. कितनी यूनिट्स डिस्प्लेस करता है ये, S1 की 2 यूनिट्स करता है. विच हैज अ यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ 0. इसका, लेकिन इसका S1 का कंट्रीब्यूशन कितना है, 0 है. तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, 0. वी विल लूज 2 into 0 फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. हम कितना लूज करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, 0 लूज करने वाले हैं. ऑल्सो वी विल लूज, हम और कितना लूज करेंगे, 13/3 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन्स 0. हम इसको S2 को भी
क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था आपको इन माय, आई थिंक इन माय थर्ड वीडियो, ठीक है, एलपीपी की थर्ड वीडियो में. वी विल लूज 0 into 13/3. 0 by displacing some of the S2 and lose 30 into 1/3 means 10 by displacing some of the Y. मैं कितना, इसको करने पे 0, इसको करने पे भी 0, बट मतलब S1 को कर 0, इधर 0, इधर 10 by displacing some of the Y. अगर मैं Y को डिस्प्लेस करती हूँ तो मेरे को 10 का फर्क पड़ता है. तो टोटल लॉस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 0 + 0 + 10 is 10, टोटल 10 का. It is called the opportunity cost because it shows the penalty occurred because it shows the penalty incurred if we pass the opportunity of leaving the solution as it is and bringing in the new variable. I think it's clear. ठीक है जी. हमने क्या किया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल रहे हैं क्योंकि ये हमें पेनल्टी इनकर करता है इफ वी पास द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लीविंग द सोल्यूशन एज इट इज एंड ब्रिंगिंग इन द न्यू वेरिएबल. अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, कर लेते हैं, तो ये है मेरा नुकसान. ठीक है, तो मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन था भी नहीं, दैट्स व्हाई वी हैव गॉन फॉर द टेबल 3. यहां तक क्लियर हुआ है. नाउ हम वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट मोर अबाउट द शैडो प्राइसेस जो सिंप्लेक्स मेथड में होता है. हाँ जी, ये रहा शैडो प्राइस. ये भी बहुत सिंपल तरीके से समझा रखा है मैंने. शैडो प्राइस इन द सिंपलेक्स मेथड, हाउ मच द ऑब्जेक्टिव वैल्यू विल इंक्रीज इफ यू गेट वन मोर यूनिट ऑफ द रिसोर्स. हमारे कितना ऑब्जेक्टिव वैल्यू पे इंक्रीज होगा अगर मैं एक यूनिट ऑफ रिसोर्स की इंक्रीज कर दूं. शैडो प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड डुअल वैल्यू. उसकी डुअल वैल्यू क्या है, जैसे द इंक्रीज इन द प्रॉफिट व्हेन यू गेट वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ स्कार्स रिसोर्स. कोई कमी है रिसोर्सेज की और हमें एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक कितना इंक्रीज होगा प्रॉफिट में अगर मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट उसकी ले आऊं, बहुत स्कार्स रिसोर्सेज की, क्या उससे फर्क पड़ेगा मेरे प्रॉफिट को. सपोज यू आर कुकिंग, है ना, एंड यू नीड वन मोर कप ऑफ मिल्क बट द शॉप इज फार, है ना. यू आस्क इफ आई हैड वन मोर कप ऑफ मिल्क हाउ मच बेटर वुड माई डिश बिकम. दैट इंप्रूवमेंट इन द डिश इज द शैडो प्राइस. आपको मालूम है बहुत दूर जाना, मैं एक कप और डाल दूं तो उससे क्या इतना क्या फर्क पड़ेगा. समटाइम्स यू फील लाइक इतनी दूर जाऊं, इतनी मेहनत करो, एक कप डालने से कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, then you will avoid going it. But the moment you feel like yeah improvement in the dish would be more, then you will, that's the shadow price. जो भी इंप्रूवमेंट होने वाला है जो हमें पता नहीं चल रहा है ना अभी, तो शेडो प्राइस है. इफ यू गेट वन मोर यूनिट ऑफ स्कार्स रिसोर्स, मशीन आ रो, लेबर आ रो, मनी हो, एक्सेट्रा, कुछ भी चीज हो, that leads to the profit increases by the shadow price amount. चलिए, कनेक्शन विद स्लैक वेरिएबल्स. कनेक्शंस क्या है स्लैक वेरिएबल्स के साथ. इफ अ स्लैक वेरिएबल्स इक्वल्स टू 0, अगर 0 आ रहा है स्लैक वेरिएबल, इन दैट केस वी से रिसोर्सेज फुली यूज्ड, नो वेस्टेजेस. ठीक है, कोई वेस्टेजेस नहीं है आपके पास, रिसोर्सेज फुली used, no wastages. It means shadow price is positive, extra unit is valuable. अगर आपकी 0 आ गया है, रिसोर्सेज हमारी पूरी यूज हो गई हैं और हमारे पास कोई वेस्टेजेस नहीं है, शेडो प्राइस इज पॉजिटिव आ जाएगा. आ गया मीन्स एक्स्ट्रा यूनिट इज वैल्यूएबल, हमारी हर यूनिट एक्स्ट्रा वैल्यूएबल हो जाएगी, है ना. बट अगर स्लैक वेरिएबल मोर देन 0, द रिसोर्स हैज लेफ्ट ओवर कैपेसिटी. जैसे हमारे वाले केस में हमारा S2 was 17, है ना, विच इज मोर देन 0, रिसोर्स हैज लेफ्ट ओवर कैपेसिटी, कैपेसिटी बची हुई है, द शेडो प्राइस इज 0. उस केस में शेडो प्राइस क्या होगा, मेरा 0 होगा. एक्स्ट्रा यूनिट गिव्स नो बेनिफिट. मैं 17 का 18, 2-3 और भी ले आऊं, क्या फायदा है, देयर इज नो बेनिफिट क्योंकि पहले से 17 बचे हुए हैं. व्हाई शुड आई पे एंड ब्रिंग द मोर S2. ठीक है, तो एक्स्ट्रा यूनिट हैज नो बेनिफिट्स. रिमेंबर, shadow price increase in the objective function if we get one more extra unit of the resource. ठीक है, जैसे टेब्लू 3 थी आपकी, टेब्लू 3 से मैं आपको बता रही हूँ, S1 हमारा 0 आया था, S2 17 आया था, S3 मेरा 0 आ रहा था. इसका इंटरप्रिटेशन क्या था, अगर मैं इसको अब इंटरप्रेट करना चाहूँ, स्लैक इज इक्वल टू 0. अगर मेरा जब 0 था, रिसोर्स फुली यूटिलाइज हो गई, एक्स्ट्रा रिसोर्स इज वैल्यूएबल, शेडो प्राइस. ठीक है, अगर मेरा शेडो प्राइस मोर देन 0 है तो क्या है, जैसे दिस इंप्लाइज टू S1 एंड S1 और S3 के लिए तो मेरा क्लियर हो गया, 0 है. अब मेरा स्लैक वेरिएबल, तो इसके अंदर शेडो प्राइस मेरा मोर देन 0 था. ठीक है, इन दोनों केसेस के अंदर ना स्लैक वेरिएबल मेरा मोर देन 0 है, मींस S2 के केस के लिए रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड और नॉट यूज्ड, एक्स्ट्रा यूनिट हैज नो वैल्यू,
शेडो प्राइस कितना है, 0 है। दिस अप्लाइज टू S2 बिकॉज लेफ्ट ओवर यूनिट 17 यूनिट्स में लेफ्ट ओवर है। सो द शेडो प्राइस ऑफ द फॉर द रिसोर्स 1 इज पॉजिटिव, शेडो प्राइस फॉर द रिसोर्स 2 इज 0, शेडो प्राइस फॉर द रिसोर्स 3 इज पॉजिटिव। आई थिंक यहां तक क्लियर हुआ है ना। अगर आप थर्ड टेबल की नाउ लुक एट द CJ ZJ रो ऑफ द टेबल 3 एट द कॉलम्स ऑफ द स्लैक वेरिएबल। ये था मेरा टेबल 3। आई नीड टू सर्च फॉर द टेबल 3। ये वाली मेरी टेबल 3 थी। इसमें CJ माइनस ZJ की बात कर रहा है। अब आप देखो ये वैल्यू S1 -5, ये -5/2 और ये मेरा है 0। S2 इज 0। ठीक है, आई वॉज हेयर, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट स्लैक वेरिएबल। ठीक है, अब लुक एट द CJ माइनस ZJ टेबल टेबलो एट द कॉलम स्लैक वेरिएबल्स। आप देख कर आए हो, आपको क्लैरिटी आ गई है। फ्रॉम योर टेबलो अंडर S1 द वैल्यू ऑफ वैल्यूज वाज -5, S2 के अंदर वैल्यू 0 थी, S3 में वैल्यू -5/2 थी। यस और नो? ठीक है, तो CJ माइनस जे वैल्यू, सॉरी, हाँ जी, now CJ minus ZJ values under these slack variables give you the shadow prices with sign reversed। जो CJ minus J values हैं जो slack variables के नीचे gives you the shadow prices, ये मेरे जो shadow prices देते हैं with the sign reversed। now the rule apply के कहता है shadow price जो क्या होता है minus CJ minus ZJ value of the slack variable। जो भी value of the slack variable आए CJ minus ZJ value जो slack variable के अंदर में उनको माइनस साइन कर दो। बिकॉज फॉर द स्लैक वेरिएबल CJ इज 0, सारे स्लैक वेरिएबल्स के मेरा कंट्रीब्यूशन 0 है, तो CJ माइनस ZJ विल बी Z माइनस ZJ। ऑब्वियसली अगर ये 0 है तो ये माइनस ZJ हो गया, विच मीन ZJ इक्वल्स टू CJ माइनस ZJ। सिंपल, साइन इधर लिया है। द शेडो प्राइस अगर मैं पूछूं S1 का शेडो प्राइस कितना है, +5, सिंपल माइनस साइन लगाया है। शेडो प्राइस फॉर S2 का 0 का 0 है। शेडो प्राइस फॉर S3 इज माइनस माइनस +5/2। The shadow price for the first resource is +5. We could increase the objective function by 5 if we had an extra hour of the first resource। अगर मेरे को फर्स्ट रिसोर्स का एक एक्स्ट्रा एक और घंटा मिल जाए तो मैं 5 घंटे 5 आवर्स उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन को 5 यूनिट से मैं बढ़ा सकता हूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। अगर मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा और मिल गया फर्स्ट रिसोर्स का तो मैं 5 आवर्स का बढ़ सकता है। ठीक है, हमें देखो रिसोर्स 1 के लिए कह रहा है R1, रिसोर्स 1 जो S1 है, शेडो प्राइस इज +5। इफ वी गेट 1 मोर यूनिट पर आवर ऑफ रिसोर्स 1 द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड विल इंक्रीज बाय 5। ठीक है, रिसोर्स 2 के लिए क्या बोल रहा है? ठीक है, यहां से क्लियर हो गया ना। रिसोर्स 2 के लिए बोल रहा है शेडो प्राइस हमारा, सॉरी एक मिनट, मेरा शेडो प्राइस है 0, तो शेडो प्राइस 0, रिसोर्स 2 हैज लेफ्ट ओवर कैपेसिटी, स्लैक हमारा इसकी लेफ्ट ओवर कैपेसिटी है 17। सो इवन इफ यू गेट 1 मोर यूनिट प्रॉफिट विल नॉट इंक्रीज। अगर उसको 1 यूनिट और दे दोगे तो पहले से ही बचा हुआ है उसके पास, तो अनयूज कैपेसिटी है, तो कोई प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेडो प्राइस इज 0 सिंस दिस रिसोर्स हैज नॉट बीन फुली यूटिलाइज्ड, फुली यूटिलाइज ही नहीं है इसलिए इसका शेडो प्राइस इज 0। Resource 3, shadow price is 5/2. If we get 1 more unit of resource 3, the objective function will increase by 2.5. Shadow price of the third resource is 5/2, indicating that we would increase the objective function by 5/2 if we had additional hour of this resource। अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा हम इस रिसोर्स का मिल जाता है R3 का, तो हमारा 2.5 का या 5/2 का बेनिफिट हो जाएगा हमें। ठीक है ना, शेडो प्राइस अभी हम इतना करा के ब्रेक लेंगे 5 मिनट्स का, एंड देन विल कम बैक टू द आर्टिफिशियल एंड टाई एंड अदर पर्सपेक्टिव। पहले समझ लो पूरा इसको। शेडो प्राइस टेल्स द वैल्यू ऑफ गेटिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ रिसोर्स। यहां तक क्लियर हो रहा है? शेडो प्राइस टेल्स द वैल्यू ऑफ गेटिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ रिसोर्स। क्या वैल्यू क्या है? जैसे हमें टेबलो 3 में पता चला है, रिसोर्सेज विद स्लैक 0 आर फुली यूटिलाइज, एक्स्ट्रा यूनिट इज वैल्यूएबल। ठीक है, तो हमारा शेडो प्राइस पॉजिटिव है क्योंकि हमारा जो चीज फुल यूटिलाइज हो गई है तो मुझे जरूरत और है।
तो उसके लिए वैल्यूएबल, मुझे कुछ पैसा दे, मुझे लेबर्स है, मेरे को बोले लेबर, मुझे लेबर चाहिए काम करने के लिए, और उधर मेरा फुल यूटिलाइज 0 हो गया, मुझे एक्स्ट्रा लेबर लानी है, तो दैट बिकम द आई हैव टू पे फॉर दैट। ठीक है, तो शेडो प्राइस कितना पॉजिटिव है। रिसोर्सेज विद स्लैक मोर देन 0 हैव अनयूज्ड कैपेसिटी। एक्स्ट्रा यूनिट नॉट वैल्यूएबल, शेडो प्राइस इज 0, जो पहले से ऑलरेडी मेरे पास सपोज लेबर है, मैं और लेबर लाके क्या बेनिफिट करूं, पहले उन्हें तो यूज कर लूं, वही खाली बैठी हैं, something like that. So that's the shadow price is 0. Now, and shadow price comes from the negative of Cj minus Zj of the slack variables. ये मैं डिस्कस कर लिया, ठीक है। Again, I am repeating so the shadow price tells the maximum amount the manager should be willing to pay for one extra unit of resource. ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट रिसोर्स के लिए कितना पे करने के लिए रेडी होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट पे मोर देन ₹5 फॉर वन एक्स्ट्रा आवर ऑफ रिसोर्स 1 बिकॉज दैट्स ऑल इट्स एड अप टू द प्रॉफिट। अगर मुझे कोई उस प्रॉफिट में मुझे 1 घंटा और मशीन पे काम करना पड़ रहा है, और मैं उसके लिए कोई मुझसे ₹10 मांग रहा है, क्या मुझे देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तो मुझे उसको 1 घंटा उसे करने के लिए सिर्फ ₹5 का ही तो प्रॉफिट हो रहा है। 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड कर लेके ₹5 का प्रॉफिट, और मुझे उसको 1 घंटा देने के ₹10 दे दूं, व्हाट डज इट मीन? नो यूज। सो अगर वो मुझे ₹5 दे रहे हैं और ₹5 दे रहे हैं तो ठीक है, चलो नो प्रॉफिट नो लॉस, बट आई एम गेटिंग द समथिंग एडिशनल। 4, अगर मैं उसको ₹4 दे के कर रही हूँ, बट मीन्स आई एम गेटिंग द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1, तो आई शुड गो अहेड विद इट। ठीक है, in that way we will solve many questions. Is it clear to everyone? Let's take the break, then we'll discuss more in detail.